Myself Adil Manzoor, final year student from Civil Engineering Department. Today I am here to present my lecture on comparison of source and gravity filter and Raphson gravity filter. So coming to the contents part, this is the content which I am going through. There comes introduction, term is used in filtration, process of filtration, types of filtration, source and gravity filter, Raphson gravity filter, and the main subject which I am discussing here is the comparison between source and gravity filter and Raphson gravity filter. Now coming to the introduction part, there is the filtration. Filtration is defined as a process by which we suspend the suspend part is present in the filter or suspend in the filter bed. When we pass through the fluid from a suspended bed. Term is used in filtration. There comes the slurry, suspension to be filtered. Filter medium, porous medium used to retain solid. Filter cake, accumulated solids present, solids on the filter. Filtrate, clear water which we get after the filtration. Now coming to the process of filtration. This is the roadmap we get of filtration water. Now coming to the types of filtration. There are two basic properties on which we discuss, on which we define, on which we differentiate the filters. That is gravity type filtration and pressure type filtration. Gravity type filtration is further divided into two types, that is source and gravity filter and Raphson gravity filter. The gravity type filtration, that is slow type slow sand gravity filter. This is the road cross section of source and gravity filter. The inlet value and there is outer value. This is the filter bed, the gravel layer, sand, water, and this is the telescopic head, adjustive telescopic tube. And this is the plan of under drainage system for source and gravity filter. Inlet, this is the inlet value, this is the central drain, and this is the lateral drain. Lateral drains are at a slope of 1 into 100, and they are open jointed lateral drains at a distance of 2 to 3 meters center to center, and that is the Raphson gravity filter paper. There we provide 6 values, and the 6 values present here. It's the inlet value, and this is the wash water value. This is the wash water value to drain water from main drain, and there is the compressor air value, and there is the wash water value, and the pore. There we can wash water troughs जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे काम देते हैं वाटर को फिल्टर करने में. Now coming to the main portion, that is the comparison of source and gravity filter and Raphson gravity filter. The first difference that we can comparison between source and gravity filter and Raphson gravity filter is the effluent pre-treatment requirements. In source and gravity filter, pre-treatment requirement is we provide water either from plain sedimentation tank or simply raw water. But in case of Raphson gravity filter, we can also provide coagulation water, flocculation water, and sedimentation is must. But in the second type, base, there is a base material. In case of Raphson gravity, source and gravity filter, the base material is gravel. The only function there, gravel supports the base, gravel supports the filter medium. But in case of Raphson gravity filter, ग्रेवल लेयर जो हमारा होता है वो दो मेन फंक्शन है उसकी यहाँ पे. एक तो वो जो हमारी सैंड होती है उसको सपोर्ट करता है, और दूसरी फंक्शन जो इसकी मेन होती है वो जो हम डिस्ट्रीब्यूट वॉश वाटर सप्लाई करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सरफेस ऑफ द सैंड में. और जो तीसरा टाइप है वो है फिल्टर सैंड, जिसकी बिना पर हम इसको कंपेरिजन कर सकते हैं. यहाँ पे है इफेक्टिव साइज ऑफ द फिल्टर सैंड रेंजेस बिटवीन 0.2 to 0.4. इफेक्टिव साइज जिसको हम डिनोट करते हैं D10 से. D10 ये मिनिमम साइज होता है in mm, through which from which below 10% of the sand is final, and after that there is coefficient Cu, coefficient of uniformity, जो हम रिप्रेजेंट करें D60 divided by D10, जिसकी रेंज होती है 1.8 to 2.5 और सामने में 3. डेप्थ ऑफ सैंड यहाँ पे हो जाए 90 to 110 सेंटीमीटर्स. अगर हम Raphson gravity filter की बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव साइज हमारा फिल्टर सैंड का होता है वो रेंज फ्रॉम 0.35 to 0.55 एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है 1.2 to 1.8. और जो यहाँ पे डेप्थ ऑफ सैंड है वो 60 to 75 तक जाती है, और हम उसको 90 सेंटीमीटर तक भी ले जा सकते हैं. और अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो हम Raphson सोर्स एंड ग्रेविटी फिल्टर में इस्तेमाल करते हैं इसका एक ही काम होता है, वो है पास फिल्टर वाटर फ्रॉम द आउटलेट चैम्बर. बट इन केस ऑफ Raphson ग्रेविटी फिल्टर इसकी दो फंक्शंस होती है. एक तो ये फिल्टर वाटर को पास करता है थ्रू द फ्रॉम द इनलेट चैम्बर, और इसकी जो काम होता है, और जो हम बैक वाश के लिए वाटर इस्तेमाल करते हैं वो यही अंडर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करता है ऊपर
नीचे से ऊपर तक। उसके बाद है इजी कंस्ट्रक्शन। अगर हम फ्लोरेसेंट फिल्टर की बात करते हैं, जो इसका कंस्ट्रक्शन पूरा वो बहुत ही सिंपल होता है, बट इन केस ऑफ रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर इट्स कॉम्प्लिकेटेड एज बिकॉज द अंडरटेनिंग सिस्टम वो हमें प्रॉपर्ली डिजाइन करना होता है यहाँ पे, क्योंकि वो हम बैक वॉश में इस्तेमाल करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देयर इज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज द मेन पॉइंट which I am discussing here. The rate of filtration in fluorescent gravity filter is small, that is 100 to 200 liters per minute per hour per minute square, and the rate of filtration in rapid gravity filter, that is 30 times more than the fluorescent gravity filter. Moving to the next point, that is efficiency. Bacterial efficiency. Bacterial efficiency in case of fluorescent gravity filter that is very high, that is 98 to 99%, and but less efficient. बैक्टीरिया को ये हमें अच्छी तरह से रिमूव करता है, बट ये जो कलर होता है हमारे पानी में वो अच्छी तरीके से नहीं करता है। बट इन केस ऑफ रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर वो लेस एफिशिएंट है इन केस ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल, एफिशिएंसी रिमूवल, बट जो वो एफिशिएंट होता है कलर रिमूवल के लिए। जो अब जो हम क्वांटिटी वाटर इस्तेमाल करते हैं फॉर बैक वॉश के लिए, वो हम 0.2 to 0.6% ऑफ टोटल बैक वाटर फिल्टर करते हैं, फिल्टर वाटर यूज करते हैं। जो हम रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर 2.2 to 5% ऑफ बैक वॉश वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल्टर to backward the filter. Now loss of head हमें बताता है कि हम अपने फिल्टर को कब क्लीन करें। Initially approximately 1.1 meter is the initial loss, but when this head loss increases, upper limit is 0.8 to 1.2 meter. जब ये इस सतह पर पहुंचता है तो हमें अपना फिल्टर जो क्लीन करना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर की, उसका जो इनिशियल है वो 0.3 है, बट उसका जो फाइनल लिमिट है वो 2.5 to 3.5 मीटर से फाइनल लिमिट के लिए। सिगरेट सुपरवाइजर इन केस ऑफ रैपिड एंड फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर वो हमें वहां पे जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि वहां पे सिर्फ दो ही वैल्यूज है, इनलेट वैल्यू और आउटलेट वैल्यू, प्रोसेस खुद हो जाती है। पर जो अगर हम रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर की बात करें, वहां पे हमें वो सिग्नल लेबर्स जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम बैक वॉश करते हैं उस वक्त हमें सिग्नल लेबर्स की जरूरत पड़ती है। हमें जो पानी अगर जो हमें जो फिल्टर वाटर पास कराना होता है अंडर ड्रेनेज सिस्टम से, उस वक्त हमें बहुत ही अच्छा ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम क्लीनिंग की बात करते हैं, क्लीनिंग हम कब करते हैं? इन केस ऑफ फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर क्लीनिंग हम 1 to 3 मंथ, मतलब हम 3 मंथ्स के बाद फिल्ट्रेशन क्लीनिंग कर सकते हैं। पर अगर हम रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर की बात करें, वहां पर हम क्लीनिंग करते हैं 2 to 3 डेज। और इसके बाद है सूटेबिलिटी। जो हमारा फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर है वो कहाँ पे सूटेबल है? अगर हम बात करेंगे जो रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर उसका एरिया बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए वो हम स्मॉल टाउन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे लैंड की कीमत बहुत ही कम है। पर जो ये है रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर उसकी जो वो हम बिग सिटीज में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फिल्टर वेरी हाई, सिटीज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है और डिमांड भी ज्यादा होती है। और अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कॉस्ट की, यहाँ पे हमारे 2 कॉस्ट होते हैं, एक डिप्रिसिएशन कॉस्ट और कॉस्ट। जो हम फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर है, फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर का जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि लैंड यूज जो हम लैंड जहाँ पे हमें फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर बनाना हो उसके लिए हमें लैंड की जरूरत है। लैंड के लिए हमें लैंड की कुछ कीमत होगी, तो उसके लिए उसका कीमत बहुत ही ज्यादा होगा, बट लो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट। अगर हम इसी तरीके से रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर की बात करें तो इसके लिए ज्यादा जमीन हमें जरूरत नहीं लगती, तो लैंड की कीमत बहुत, अगर लैंड की कीमत ज्यादा होगी तो ज्यादा लैंड जरूरत नहीं लगती, इस वजह से उसके लिए इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम होते हैं, पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और एक बात की मैंने डिप्रिसिएशन कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, जब हम उसको प्रॉपर जब हम उसको हर दिन इस्तेमाल करते हैं तो उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर और यहाँ पे मैकेनिकल एसेट्स बहुत ही कम है, सिंगल दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है हमें, तो एसेट्स की वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे जो फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर है यहाँ पे एसेट्स की मैकेनिकल जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है। पर अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट की बहुत ज्यादा होती है। और कंक्लूजन पे अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे, जो हमने मैंने कंपैरिजन किया है, अगर हम इस कंपैरिजन की बिना पे देखेंगे तो फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर वो ऑब्सोलीट है नाउअडेज, वो हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर हम देखेंगे उसकी तरफ जो फ्लेक्सिबिलिटी है या सूटेबिलिटी है, अगर हम कभी कभार अगर भी कभी कभार पानी ज्यादा जरूरत पड़े तो फ्लोरेसेंट ग्रेविटी फिल्टर वो डिमांड हमें नहीं देता है, पर जो रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर है वो हमें डिमांड पूरी देता है जितनी हमें जरूरत
लग दिया है। तो दैट इज द फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर योर Why is the color is more represent filters? Basically, the color removal efficiency, it is the mechanical portion, it is the mechanism portion of the fluorescent gravity filter, or Robertson gravity filter. In color removal, there are 4 mechanisms in the which we use in the filtration. First one is mechanical staining, second one is sedimentation, third one is electrobiological, and fourth one is electrolytic action. जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन है, जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं सैंड में, वो फ्लोरोसेंट ग्रेविटी फिल्टर में वो बहुत ही कम होते हैं। और जब रैपिड सैंड ग्रेविटी में सैंड इस्तेमाल करते हैं उसकी चार्ज बहुत ज़्यादा होती है। और जब चार्जेस कम होते हैं फ्लोरोसेंट ग्रेविटी में, तो जब पानी हम उसके जरिए से ड्रॉप करते हैं, पानी में भी कुछ चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होती है। पर जब अगर हम बात करें कि फ्लोरोसेंट ग्रेविटी फिल्टर में वहाँ पे चार्जेस बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक चार्जेस ज़्यादा डेवलप नहीं होते, इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा नहीं होती है। उसकी वजह से जो वहाँ पे होता है, जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं वो ज़्यादा कलर रिमूव नहीं करते। तो यहाँ पर बशाद ने क्वेश्चन किया है कि जो फ्लोरोसेंट ग्रेविटी फिल्टर है उसमें एरिया क्यों कम करते हैं। अगर हम बात करेंगे D10 की जो इफिशिएंसी है, जो ये D10 हमें बताता है कि रेंज ऑफ पार्टिकल साइज हमारा क्या है। जितना D10 वैल्यू कम होगा, उतनी ज्यादा हमारी फाइन सैंड होगी, और जितनी ज्यादा हमारी फाइन सैंड उतनी ज्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा, और जितना सरफेस एरिया हमारा होगा उतना एफिशिएंसी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी ज्यादा होने से जो हमारा वाटर को जो उसको एनर्जी जरूरत है कि उसको एनर्जी कम मिलती है। सो द एनर्जी जो हम उसको कम मिलती है, जो रेट ऑफ, उसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम मिलती है उसको। सो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता है, वो भी लेस होता है फ्लोरोसेंट ग्रेविटी फिल्टर या 5% ग्रेविटी फिल्टर। How does the growth of Shimusdek affect the efficiency of filtration? How does the growth of Shimusdek affect the efficiency of filtration? ग्रोथ ऑफ शिमुलेट ये बायोलॉजिकल एक्शन है जो ग्रेविटी फिल्टर्स में होता है। जो ग्रोथ ऑफ, अगर हम देखेंगे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में, वहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होती है, अबाउट 30 टाइम्स मोर। पर जो फ्लोरोसेंट ग्रेविटी में वहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ही कम है, वो वहाँ पे जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वो कम है। अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ शिमुलेट ये बायोलॉजिकल एक्शन है। इसमें जो हम पानी पास करते हैं, जो हमारा फिल्ट्रेट है वो नॉट ओनली सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रुकाता है, बल्कि वो ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमारे पानी को साफ करता है। वो कैसे, जब हम अपना पानी फिल्टर के पास करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऊपर की सतह पे बैठ जाते हैं। पर जब ऊपर की सतह पे वहां पे पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसकी और एक न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं वहां पे, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिक प्रेजेंट होते हैं वहां पे, तो इनको जो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करना है। पर इसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वहां पे एल्गे प्लैंक्टन्स बनते हैं। एल्गे जो प्लैंक्टन्स जो बनते हैं वो एल्गे प्लैंक्टन्स जो बनते हैं वहां पे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। जब वो उन ऑर्गेनिक डिकम्पोज को करते हैं तो वहां पे एक लेयर डेवलप होती है, उसको बोलते हैं शिमुलेट लेयर। और जो शिमुलेट लेयर है इसकी वो थिकनेस होती है 1.1 to 2 mm, जो सैंड के ऊपर बनती है, एक सतह बनती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाती है हमारे पास। जो क्लीनिंग पीरियड है हमारा फ्लोरोसेंट का या रैपिड सैंड का, वो 2 to 3 months या 2 to 5 days है। तो इस टाइम के लिए हम फिल्टर को नॉन फंक्शनल नहीं रख सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं? इस टाइम में हम फिल्टर को नॉन फंक्शनल रखते हैं, पर वो है फ्लोरोसेंट ग्रेविटी फिल्टर में। अगर हम रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की बात करते हैं वहां पे हम फिल्टर को नॉन फंक्शनल नहीं रखते, इसीलिए जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है उसकी एफिशिएंसी बहुत कम मिलती है। क्योंकि जो शिमुलेट लेयर डेवलप होती है, हम फ्लोरोसेंट ग्रेविटी फिल्टर में हम उसको टाइम देते हैं फिर से बनने के लिए, पर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में हम उसको टाइम नहीं देते बनने के लिए, इसलिए हमारे वो
रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एप्स एंड ग्रेविटी पे ज्यादा है, उसमें कम, क्योंकि वहाँ पे मुझे कहते हैं हम टाइम नहीं देते फिर से बनने के लिए। और कोई जरा वो प्लान आपने बनाया था अंडर ड्रेनेज का, central drain is okay. Yes sir. This is for slow side filter. Yes sir. Okay. What about these laterals? Lateral sir, Are these pipes or these are drains? sir these are drains of diameter 15 to 30 centimeters in the diameter. Then how water enters it? Sir, two perforations. What is the dia of that perforation? Sir, maybe 0.2 mm maybe. 0.2. पूरा क्लियर हो सर 0.2 sir. 10 point is loss of head. Sir, Loss of head. When approximately 0.1 meters is the initial loss and 0.8 to 1.2 is the final limit. Yes, sir. When cleaning is required. yes sir. How we go for the cleaning of slow side? स्लो से Yes. सर अपनी स्क्रैपिंग करते हैं तो आप जब हम क्लीन करते हैं उसको हाँ ठीक है ठीक है. जो 0.8 1.2 meters. यस सर. How we measure? सर बेसिकली सर यहाँ पे हम देखिए सर जो हमारे जो सैंड है सर, सर हम यहाँ से जो इसकी हाइट है सर यहाँ पे हम 1.2 उठाते हैं सर, जो यहाँ पे इनलेट पॉइंट है वो यहाँ से होता है सर, हम देखते हैं फिर पानी की सतह कहाँ तक है सर, अगर हम 2 पॉइंट उठाएंगे सर इधर से ये क्या वाटर देखना होगा कि हेड मास कितना हो गया है सर, जो वाटर की हाइट होती है सर फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू द अपर पॉइंट सर, इसको हम एक जो यहाँ से 0.1 रखते हैं तो अगर ये इनलेट पॉइंट है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे वाटर की सतह है सर, इसको 0.1 सर, द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स गिव्स अस द हेड लॉस। मेजर कैसे कहाँ पता चलेगा 1.2 मीटर हेड लॉस सर ज्यादा मेजरमेंट सर जो एडजस्टेबल सर ये भी एडजस्टेबल मेजरमेंट